اور یہ ایکٹیویٹی ایک دن کی ہے، اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہا ہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے، تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندے کے لائحہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے۔ سیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا یہ فیصلہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا، وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا، اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں۔ اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا، آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا، اس میں خرید رہا ہے، اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے۔ تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں، ڈفرز ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں۔ تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا، ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے، ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے، مطلب منفی میں جا رہا ہے، اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہیں وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟
जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा? वो 55-60 हज़ार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना, फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता और उसकी शरह 45% से ऊपर जा चुकी है? तो वो फिर क्या करेगा? आम पाकिस्तानी क्या करेगा? वो डेफिनेटली इनके आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि तुम्हारे तमाम पॉलिसीज गलत है, तुम गलत लोगों को लेकर आए हो, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, जिससे पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने तो कभी अपना फैसला सुनाना है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से मरना उनका मुकद्दर है, तो क्यों ना एक मकसद के लिए जो है उसकी शहादत हो। अगर ड्रोन अटैक से और जेट तैयारी की बमबारी से एक बंदे ने जो है शहीद होना है, तो इससे अच्छा है कि वो किसी मकसद के लिए शहीद हो। और वो मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसाफ का असूल, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी, पाकिस्तान में आज़ादी से जीने की आज़ादी। ये तमाम चीज़ों के लिए वो रोडों पर आएगा, पुरअमन एहतजाज करेगा। और यही वक्त है। अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त भी हमने ना सोचा, और जो फ़ॉरेन रिज़र्व बीग से और कचकोल से 21 अरब डॉलर थे, और अभी जो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फ़ॉरेन रिज़र्व कम हो जाएंगे। तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा। तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था, और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में ये होना चाहिए कि जहाँ पर रोकेंगे वहाँ पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया, और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है वो गर्म की जा रही है, और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को, या जो जहाँ पर ये वाक़े होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें, और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है, और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं, तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो,
जो है गर्मी हो सर्दी हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। एक मिनट इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि जब इमरान खान साहब के नज़रिए को देखा जाए, अमन के नज़रिए को, उन्होंने हमेशा इन ऑपरेशन की बात की और जब जब नॉमिनेट हुए थे तो उनका एक ट्वीट भी आया था जिसमें साबित वज़ीर के बारे में ये कहा गया कि वो उनके अमन के नज़रिए की बातदारी नहीं कर पाए। तो आप जब सीएम बने तो आप उनकी बयान की इस तरह किसी सिलसिले में कुछ आए, लेकिन अभी जो जर्मनी चल रही है वेस्टर्न बॉर्डर पर और अभी जो आपने ट्रेन और ड्रोन बयानों का तस्करा किया, तो आपकी पॉलिसी क्या है, आपका मौक़िफ़ इस पर क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसका ये मौक़िफ़ था कि साफ सबसे भी नहीं सामने आते? अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ साफ हूँ भाईजान, मैं खुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया और उनकी मुतफ़िक़ा ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फ़ैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन, तिरामी इन्होंने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फ़बारी पड़ी है, आपने बर्फ़बारी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की ज़ोर पर कोई अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो हम मुसल्लह जते नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। हमने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, पुरअमन तरीके से अपने लोगों को सच बोलना है। उसके बाद भी अगर कोई डंडे की ज़ोर पर, बंदूक की नोक पर अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो हम एहतजाज ही पुरअमन कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं है। आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ पिंडी में जलसे का इजाज़त को नहीं दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट या सूबाई हुकूमत पंजाब। और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदमनी शुरू हैं, जो बदमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से, जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी, तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो हमने किया, ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम बदमनी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। इनका एहसास हुआ। सब्र करें, मैं आ रहा हूँ ना। सबसे पहले जो है उनकी भी थोड़ी वो सुने ना।
सिर्फ हमारे बारे में सुनते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब भी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो है हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, अभी भी हमारे वर्कर्स की चादर और चार दीवारी की पमारी हो रही है। तो हम पुरअमन हैं, ये इंतशारी है। ये पाकिस्तान में हमेशा इंतशार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब पुलिस बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। अच्छा, ये पंजाब पुलिस बन गई है। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा शर में खैर होता है। तो पाकिस्तान में इंतशार होगा तो ये जाली हुकूमत यहाँ मुसल्लत रहेगी। पाकिस्तान में इंतशार होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि वो इनको जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेगी। तो इनका शर में हमेशा खैर रहता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शर ना हो, जो ये चाहते हैं कि हो। हमें ये भी खदशा है कि ये फिर अपने लोगों को 9 मई की तरह हमारे लोगों में जो है वो अंदर घुसा कर कोई इंतशार फैलाएंगे। लेकिन हमने इस दफ़ा वर्कर्स को कहा है कि जो भी इंतशारी आप में घुसे और वो गलत काम करे, आपने उनको पकड़ना है, उनसे वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो हमारे सफ़ों में इनको घुसाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनओसी इनका काम है कि मिले दे। ये बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर पौधेदारान नियात मचूली तो अभी से जारी है। 9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके जिम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा? क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी, उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है। आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँचे? देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में बराए-नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मज़दूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है। लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी, आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है। मैंने तो बार बार मैं उनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजाम हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दीवारी की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे।
वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में, या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा लोग ईद से पहले आपने ईद से पहले ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई बख्श बना, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदे तौर पर अमली तौर पर कब से? सर एक सवाल कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे हैं, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाए। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपने सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं, लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन